کشمیر لائف کے آج کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے. ناظرین محترم، آج کے شمارے میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ایسے استاد سے جو پچھلے 12 سالوں سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سرو تو کر رہے ہیں، لیکن سرو کرنے کے دوران جو اس کے اپنے خواب تھے، ایسا انہیں کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ جو اپنے خواب ہیں انہیں پورا کرنے میں پڑھانا بیچ میں کیا رکاوٹ بنے گا. ناظرین محترم، حال ہی میں آپ نے یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ فل برائٹ فیلوشپ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی طرف سے جو انہیں ملی ہے، اس کے ذریعے سے یہ اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یو ایس جائیں گے اور فیلوشپ کے تحت وہاں آگے پڑھائی حاصل کریں گے، ریسرچ کریں گے. تو ہمارے ساتھ آج کے اس سیشن میں رہیں گے رمیز سودان. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت استقبال، بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. جی شکریہ بہت بہت کشم لائف کا، اور آپ کا کہ آپ نے موقع دیا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے. جی شور. سب سے پہلا اور بنیادی سوال آپ سے یہی ہوگا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے اور تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ رہا؟ جی دیکھیے اقرا جی، میرا جو اپبرنگنگ ہے انیشیل ڈیز میں اڑی کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن بنیاد اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ہوا. براٹ اینڈ بورن ان بنیاد. اس کے بعد پھر ابتدائی تعلیم کے بعد پھر میں بارہمولہ شفٹ ہو گئی. اس کے ساتھ پھر ہمارا جو جرنی تھی اکیڈمک وہ جاب میں کنورٹ ہوئی ان 2010. اینڈ 10 کے بعد پھر ابھی جو ہے میں پوزیشنز ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن میں سرو کرتا آ رہا ہوں. اور اس بیچ میں کافی موقع ملے کہ اپنے اسکلس کو، اپنے ٹیچنگ کیریئر میں کچھ اپنے آپ کو اور مزید ان لرن اور ری لرن کرنے کا بھی موقع ملا. ابھی یہ جرنی شروع ہے، یہ ان اینڈنگ لائف لانگ جرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کنٹینیو رہے گی. جی بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ جو فل برائٹ فیلوشپ کے تحت پورے ملک میں یعنی ہندوستان میں 5 ایسے کچھ ایسپائرنٹس اس تعلق سے سلیکٹ ہوئے ہیں. ان میں سے کشمیر سے آپ سلیکٹ ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں اس تعلق سے بتائیے گا فیلوشپ کے حوالے سے کہ آپ نے کیا یہ خواب پہلے ہی دیکھا تھا؟ اس تعلق سے معلومات پہلے ہی آپ کو حاصل تھی کس طرح کی ایک فیلوشپ ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، آج کل کے آپ کے ڈیجیٹل زمانے میں اور ساتھ میں ہماری جو میڈیا کا اور اس طرح کی انفارمیشن، اور میں سمجھتا ہوں کشمیر لائف اس میں ایک اپنے آپ میں بہت بڑی امپورٹنٹ ایک سروس انجام دے رہا ہے کہ جو آپ کے تھرو، آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو کافی سارے لوگ اب جو ہیں، اور میں بھی کافی ٹائم سے فالو کرتا آ رہا ہوں، موقع ملتا ہے کہ جو نئے ایسپیرنٹس ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ روبرو ہوتے ہیں ورچولی ان لوگوں سے جو باقی اپنی زندگی میں کچھ ایک چیزیں اچھی اچیو کرتے ہیں. تو اس طریقے سے میڈیا کے تھرو ہی آئی تھنک سوشل میڈیا اور ہمارے کچھ اور پلیٹ فارمس، ساتھ میں ای میل کانٹیکٹ وتھ سم آف دا فیلوز جو پاسٹ میں رہے ہیں، ان کے تھرو موقع ملا کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. اور کشمیر جیسی جگہ سے جہاں پہ ہمارا انفارمیشن کا جو ہے اس طریقے کی جو اوپن سورسز نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم فزیکلی ملیں اور بات کریں، ہاں ورچولی اس پہ آپ کے پلیٹ فارم اور باقی پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں موقع ملتا ہے دیکھنے کا. تو ویسے ہی مجھے بھی اس کا انفارمیشن ملی اور دین یہ پروسیس شروع ہوا. آئی تھنک بہت لمبی جرنی ہے یہ پروسیس اپلیکیشن کی، جس میں کم سے کم 6 سے 8 مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا ٹھیک. آپ نے ایک اچھی بات کی اور ہم سب کی توجہ مرکوز کرائی، وہ یہ کہ ڈریم بگ کے نام سے کشمیر لائف نے ایک انیشیٹو لیا تھا جس میں ہم نے ایسے طلباء سے بات کی تھی، ایسے طلاب سے بات کی تھی جو اس وقت مختلف ممالک میں ہیں اور اپنے سپنوں کو پورا کر رہے ہیں، کسی اسکالرشپ کے تحت یا فیلوشپ کے ذریعے سے ریسرچ کر رہے ہیں، پڑھائی حاصل کر رہے ہیں. تو اسی انیشیٹو کی ایک چھوٹی سی کوشش یہ بھی ہے کہ ابھی ہم اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر ہم فل برائٹ فیلوشپ کے حوالے سے بات کریں، ہمیں ایک مختصراً معلومات دیجیے کہ کیسے ایک ایسپائرنٹ اس کے لیے اپلائی کریں، ڈیٹ کیا رہتا ہے، اسٹارٹنگ ڈیٹ، اور پھر ایپلیکیشن. اس کی جو اپلیکیشن سائیکل ہے جی، وہ ان دا منتھ آف جین ایوری ہے، پیریوڈک ہے، بڑا اپنے آپ میں فکس ٹائم رہتا ہے، جس میں جنوری میں اپلیکیشن پروسیس دے سیک اپلیکیشنز. اور اس کے بعد کچھ ایک ٹائم 2-3 فیزز میں یہ اپلیکیشن پروسیس جو آپ نے مجھے پوچھا کہ
2-3 महीने में आप एप्लीकेशन अपना सबमिट करते हैं, 6 to 8 months है। और जनवरी में स्टार्ट होते हुए ये पहले एप्लीकेशन आपकी सबमिशन होती है, जिसमें वो सारे लवाजमात हैं जो हम बात कर रहे थे। आपकी एप्लीकेशन के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस का प्रोसेस, फिर वो सबमिट करते हैं। उसके साथ फिर आप वो क्रॉस करने के बाद अप्रैल मई के महीने में आपका फिर नेक्स्ट फेज आता है कि आप जिसमें आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो आपको टॉफिल का मौका मिलता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, मैं बता दूं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। तो उस टॉफिल के फेज से गुजरने के बाद ऑलमोस्ट आपका 90% जो आपका प्रोसेस है, आपका जर्नी आपकी, मैं कह सकता हूँ इसकी फुल ब्राइट की, तो दैट एंड्स। एंड फिर उसके बाद कुछ लवाजमात हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, 10-15% जो आपको आपके मेडिकल फॉर्मेट्स हैं, आपके मेडिकल्स हैं और आपके वीजा फॉर्मेलिटीज एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, यू डू दैट। बट एक 80 से 90% का जो आपका है ये 3 फेजेस में, आपका एप्लीकेशन, देन योर इंटरव्यू फेज, आपका पर्सनल जो आपका इंटरेक्शन रहता है बोर्ड के साथ, और जिसमें आपके यूएस के जो हैं फुल ब्राइट के मेंबर्स रहते हैं। और मेरे अपने इंटरव्यू की बात में करूँ रजीत, तो क्योंकि कोविड का पीरियड था, अभी जस्ट एट द वर्ज ऑफ, आई मीन लास्ट डेज में था, तो उनने मुनासिब ये समझा कि ये इंटरव्यू जो है वो वर्चुअली हो, तो वर्चुअल मोड से ही मैंने इंटरव्यू अपना फेस किया और वो मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड। जाहिर सी बात है, इस तरह के जो ख्वाब हम देखते हैं मुसलसल काविशात का ही नतीजा है जब एक इंसान इन्हें अचीव कर पाता है। आपसे ये सवाल रहेगा, क्या आपकी ये पहली कोशिश थी या इससे कबल भी आपने इस तरह की कोशिश की थी? जी, मैं अल्लाह का बहुत बहुत मशकूर हूँ, उनकी बारगाह में मेरी बड़ी इनायत रही मुझ पे कि मैं ये फर्स्ट अटेम्प्ट था टॉफिल इसका फुल ब्राइट का, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कुछ अपने दोस्तों की मदद से, उनकी कुछ गाइडेंस की मदद से, तो मैं क्रैक कर पाया। और इनफैक्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मैंने कहा कि बड़ा रिगरस, बड़ा लेबोरियस एंड वेरी कम्पिटिटिव, वेरी सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ्स, स्पेशली कश्मीर के। हमारे पास वर्चुअली ही मोड है कि जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी से। तो मेरे ख्याल से ये इट्स अ बिग ब्लेसिंग फ्रॉम ऑलमाइटी कि आई हैड द चांस टू। जब एक इंसान ने इस तरह का कोई ख्वाब देखा होता है कि किसी फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, जाहिर सी बात है उसके लिए उसे जद्दोजहद के साथ साथ तैयारी भी करनी पड़ती है। इसके लिए क्या मखसूस तैयारी करनी होगी एक किसी भी शख्स को? आपके कश्मीर लाइफ के प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मेरा एक छोटा सा सेशन था, अभी ऑटोनोमस कॉलेज हमारा है, बॉयज डिग्री कॉलेज बारामूला, और वहाँ साइकोलॉजी के कुछ स्टूडेंट थे फ्रॉम ऑल कश्मीर। तो मैंने उनको भी एक बात बताई, उन्होंने पूछा कि सर कहाँ से शुरू करें और ये कहाँ से शुरू होगी जर्नी। तो मैं बताऊंगा कि आई थिंक लाइफ की एक स्टेज पे जब आपका करियर, या तो आप उसको एक नया मोड़ देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसको एक नई पॉलिशिंग करके in a new way you want to present yourself to the world or to yourself itself, or you do one thing कि आपके करियर में कुछ ऐसे करियर प्लेटविंग या करियर के कुछ ऐसे टिप्स होते हैं कि जब आप चाहते हैं कि I should try to redefine and give meaning to my own career and meaning to my own life. So Fulbright की जर्नी कुछ इसी तरीके का एक मेरे ख्याल से अमल था कि जिसमें पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो बहुत अच्छे थे, जो कि डॉट्स के जरिए आपके जुड़ते चले जाते हैं और एक नेट रिजल्ट रहता है कि आप किसी ऐसे प्रोग्राम में आप कामयाब होते हैं। और दूसरी चीज ये भी थी कि एक अपने अंदर एक स्ट्राइव था कि मैं एक टीचर हूँ पब्लिक स्कूल एजुकेशन का कश्मीर में, और फॉर सम रीजन और द अदर वी नॉर्मली डोंट टेंड टू अप्रिशिएट आवरसेल्व्स फर्स्ट कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और सोसाइटी की तरफ से तो बहुत सारी अप्रिसिएशन होती है और बहुत सारी ऐसी चीजों की मिलती है। तो वो चीज कहीं मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हम हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम अपने आप को रिडिफाइन करके प्रेजेंट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताऊं कि इस सारे प्रोग्राम से पहले ये पूछा जाता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू आर बैक होम। तो आपका ये मुद्दा नहीं कि व्हेन यू आर इन यूएस और एनी अदर स्टेट इन द वर्ल्ड, तो आप वहां पर रहते हैं और आप वहां पर आप किस तरीके से सर्व करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप वापस आते हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी है इन योर थॉट दैट यू कम बैक
and you serve back to your society, back to your village, back to your town. तो मेरे अंदर ये था कि वापस आना है यहाँ के हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो थोड़ा सा थोड़ा सा जो आपका किसी वजह से कहीं लगता है कि डिरेल्ड है, किसी वजह से वैसा है कि मोटिवेशन नहीं है, किसी वजह से ऐसा लगता है, ऑल दो सारे इंग्रेडिएंट्स है, मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर देयर, ऑल द इनपुट्स आर देयर. सो मुझे लगता है मेरा एंड रिजल्ट ये है कि उनकी लाइफ में कुछ तब्दीली आई. ओके, फुल ब्राइट फेलोशिप जो है, क्या ये किसी एक मखसूस सब्जेक्ट में ही मिलती है या किसी भी सब्जेक्ट के तहत आपको मिल सकती है फुल ब्राइट फेलोशिप? जी, फुलब्राइट का एक बहुत बड़ा एक एम्बिट है, बहुत बड़ा कैनवास है जहाँ पे आप कुछ शॉर्ट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आप जाते हैं, उसकी तरीके के आप सेमिनार्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए रहते हैं, इस तरीके के कोई मास्टर्स और रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, उसमें आप चले जाते हैं. तो डिफरेंट डोमेन्स हैं काफ़ी सारे, जो देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी, डिपेंड्स ऑन के आप अपने ग्रेजुएशन और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या इवन उससे पहले आप अपने क्या गोल्स लेके चलते हैं और आप करियर को आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं. तो इसलिए उसमें काफ़ी सारा स्कोप है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कर सकते हैं. उनकी जो अपनी वेबसाइट है फुलब्राइट की जो है, और उसमें इंडिया का जो अपना एक ऑफिस है USIEF करके, तो उनकी वेबसाइट पे या फुलब्राइट कमीशन की वेबसाइट पे जब बच्चा हमारा जो एस्पिरेंट चला जाएगा तो वहाँ पे आप वो पहले ही ओपन करके देख सकता है कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी फैसिलिटी. और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे माशाल्लाह, आई एम नॉट द ओनली वन, ऑल्दो दिस ईयर आई एम द वन फ्रॉम कश्मीर इन दिस प्रोग्राम, बट इससे पहले हमारे कई सारे जो ऐसे मेरे दोस्त मेरे वो कुछ माय सिस्टर्स हैव एक्चुअली गॉन ऑन टू दिस प्रोग्राम. सो जो अपने आप में इंस्पायरिंग है उनको उनका देखना, उनका सुनना, उनको फॉलो करना. तो वो कुछ पब्लिक पॉलिसी में कहीं गए, कुछ लोग अपने रिसर्च प्रोग्राम में वहाँ पर हैं, कुछ लोग अपने मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स में हैं. तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिपेंड करता है कि आप वो किस स्टेज पे अप्लाई कर रहे हैं. आप खुद किस सब्जेक्ट और किस मौजू के तहत वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में? जी, मेरा जो है ये एजुकेशन के ऊपर ही एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप अपने एजुकेशन एज उसमें जो मेजर डोमेन्स है. मेरा अपना सब्जेक्ट की आपने बात की तो मेरा फोकस एरिया जो है वो इमरजेंसी मैनेजमेंट और चाइल्ड सेफ्टी है. तो कश्मीर जैसे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे आए दिनों हमारे बच्चे जो है किसी न किसी तरीके से मेंटली, सोशली, फिजिकली और बाय एनी मीन्स तो वो इफेक्ट होते हैं. उनके करियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स और अपहीवल चलते हैं. एंड इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें भी ऐसी है, तो जिसमें मेरा एक कोर सब्जेक्ट एरिया जो है वो इमरजेंसी मैनेजमेंट का, हादसाती तौर पे जो ऐसे असरअंदाज हो जाते हैं हमारे बच्चों पे, तो उस पर मेरा फोकस रहेगा. और तो मेरे पास एक बेंचमार्क है मेरे करियर में 2005 का जो हमारा अर्थक्वेक था, और which consumed me, I can tell you through my research that consumed around 10% of our children in that earthquake. And in our part of Kashmir, we saw about 400 children dying, and I think वो 1400 deaths में वो 400 का figure, that's a huge number. तो और सोशली इमोशनली जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है इन डिजास्टर्स का, इन हादसात का, वो बच्चों को कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन में बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन पैदा करता है. इन चीजों पे आप काम करें वापस आकर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. जी, इस मखसूस एक फेलोशिप के लिए किन मराहिल से गुजरना है आपने वो हम तक मालूमात पहुंचा दी, तफसीलन मालूमात पहुंचा दी, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे, मेरे ख्याल से गालिबन इस सेशन का एक आखिरी सवाल होगा, वो ये कि अब आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है और कब जा रहे हैं? 3 महीने का टाइम तो लगभग रहेगा, क्योंकि जनवरी में डिपार्चर होगा, और इस पीरियड के दौरान आपको थोड़ा सा मुझे होमवर्क करना है कि मैं किस तरीके से अपने आप को तैयार करता हूँ, मैं अपने पहले तो अपने कश्मीर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, बिकॉज इन द होल पिक्चर पूरे इंडिया की बात करें तो हमारी जो ज्योग्राफिकल एंटिटी है या हमारी जो डायनामिक्स है सोसाइटी की, तो अब वो बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं. और देयर विल बी डेफिनेटली an opportunity to share our culture, because it's all about culture. You know, Fulbright का जो बेसिक जो एजेंडा रहता है, when it was commissioned way back in
75 years back. तो ये था कि आप किस तरीके से डिफरेंट कल्चर्स को आपस में जोड़ते हैं एंड डिफरेंट कल्चर्स को आप जोड़ते हैं, उनके लोगों को जोड़ते हैं, देन यू ट्राई टू सी के व्हाट कम्स अप. तो मुझे ये मौका मिल रहा है कि इन द मंथ ऑफ जैन जब डिपार्चर होगा, एग्जैक्ट डेट्स तो अभी अनाउंस नहीं हुई, तो उसके बाद फिर मौका ये मिलेगा कि उनसे भी कुछ सीखने का, क्योंकि उनका आईटी का जो नेटवर्क है स्कूल्स, इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज, that is something to really learn from. I'm so happy that I'm representing, and as you mentioned in the very onset, very humbly that I'm for this program I am one from Kashmir, and in India we are 6. For January के cohort में Ikra ji, we are 2 only, one from Delhi and one from Kashmir. और बाकी लोग जो होंगे 4 लोग, they will be departing in the month of September 2023. Great. Well, Ramli sir, we wish you all the best, and thank you so much for being with us in today's session. Thanks a lot. Thank you so much, and I'm always available, open to all the aspirants and all the candidates who wish to really know what it is all about and how really, because वो जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उसके लिए आपको डेफिनेटली किसी न किसी ऐसे दोस्त की जरूरत पड़ती है. If I can be of any help to anybody, any of my brothers and sisters, I will be more than happy to share. Thank you. Thank you so much.